بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1782 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 تا 16، 13 to 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو میں نے نافرمانی کی، ربی میرے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دینی اپنی بندگی کو، فاعبدو تو تم عبادت کرو، ماں جس کی شئتم تم چاہو، من دونی اس کے سوا۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان الخاسرین بلا شبہ نقصان اٹھانے والے تو، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، واہلیہم اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا خبردار، ذالک ہوا یہ وہی ہے، الخسران المبین ظاہر خسران نقصان، لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر، ظلل سائبان ہوں گے، من النار آگ کے، ومن تحتہم اور ان کے نیچے، ظلل سائبان ہوں گے، ذالک یہی ہے، یخوف ڈراتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ، عبادہ اپنے بندوں کو، یا عبادی اے میرے بندو، فاتقون بس تم مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔
दूसरी बात कह दो कि मैं तो अल्लाह की इबादत इस तरह करता हूं कि मैंने अपनी बंदगी खालिस उसी के लिए कर ली है। तीसरी बात, अब तुम उसे छोड़कर जिसकी चाहे इबादत करो। चौथी बात, कह दो कि घाटे का सौदा करने वाले तो वो हैं जो क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों सबको नुकसान में डाल देंगे। पांचवी बात, याद रखो कि खुला हुआ घाटा यही है। छठवीं बात, ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर भी आग के बादल हैं और नीचे भी वैसे ही बादल। सातवीं बात, ये वो चीजें हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। आठवीं बात, लिहाजा ए मेरे बंदो मेरा खौफ अपने दिल में रखो। बुजुर्गान मोहतरम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से खिताब है कि ए नबी, आप इन मुशरिकों और तमाम ही लोगों से डंके की चोट पर ये ऐलान कर दो, कह दो कि मुझे इस बात का खौफ है कि अगर कहीं मुझसे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई तो मुझे अल्लाह की तरफ से अजाब का खौफ है। इसलिए मैं अल्लाह की नाफरमानी करने से डरता हूं और इसे एक अल्लाह की पूरे इखलास के साथ इबादत करता हूं कि मेरी इबादत में सिवाय अल्लाह के और किसी का हिस्सा न हो। अगर तुम सब जान बूझ कर भी इन बातिल माबूदों की या जिसकी तुम चाहते हो इबादत करना चाहो तो कर लो, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा जाएगा, मगर तुम इतना याद रखो कि तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। और ये जान लो कि सबसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं, वही लोग घाटे में हैं जिन्होंने दुनिया में शिर्क और बुत परस्ती के जरिए आखिरत के फायदे से अब अपना नुकसान कर लिया। आखिरत की जितनी राहतें हैं, आखिरत की जितनी नेमतें हैं, आखिरत की जितनी आराइश है, आखिरत की कितनी जितनी राहतें हैं, तमाम सी ये लोग मालूम है। दुनिया तो अब उनके हाथ से गई, आखिरत भी वो जन्नत और उसकी नेमतों से मालूम हो गए। दुनिया में अहलो अयाल के साथ तो रहे, मगर आखिरत में इनका कोई अहलो अयाल नहीं होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरी है कि हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक बीवी रखी है, लेकिन जब वो दोज़ख में जाता है तो अपनी जान का भी नुकसान कर बैठता है और अपनी उस जन्नती बीवी से भी हाथ धो बैठता है। अल्लाह ने फरमाया यही तो सबसे बड़ा घाटा और नुकसान है कि यहाँ की अबदी जिंदगी में उसे कोई राहत नसीब नहीं। अक्लमंद इंसान ये चाहता है कि वो थोड़े वक्त की मशक्कत बर्दाश्त कर ले ताकि हमेशा की तकलीफ से उसे राहत मिल जाए, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन ये काफिर तो बेअक्ल है कि इस दुनिया के मुख्तसर से फायदे के लिए आखिरत के हमेशा के फायदे से अपने आप को उन काफिरों ने महरूम कर लिया। आखिरत में उनका क्या नुकसान है और उन्हें किस तरह की सजा दी जाएगी, बयान किया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत किया करते थे उनको आग में डाला जाएगा, और आग में भी इस तरह कि उनके ऊपर से भी आग होगी, नीचे से भी आग होगी। तो गौर करो कि उन जहन्नमियों का हाल क्या होगा। जब हमें इस दुनिया ही का एक अंगारा लगता है, छोटा सा चिंगारी भी लगती है, तो हम बेचैन हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर उस जहन्नम में कैसे रहेंगे जिसका बिछोना भी आग है, ओढ़ना भी। सूरह आराफ की आयत नंबर 41 में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश। उन जहन्नमियों के लिए दोज़ख ही का बिछोना है और ऊपर से ओढ़ना भी उनका वही होगा। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 56 में कहा गया यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जिस दिन उन्हें ऊपर से अजाब घेर लेगा और नीचे से भी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हम सबकी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही वो अजाब है जिससे अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को डरा रहे हैं ताकि हम उससे बचने की तदबीरें इसी दुनिया में कर लें, क्योंकि वहां आखिरत में जो कुछ भी दिया जाएगा वो उसी दुनिया में किए हुए आमाल पर दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदो मेरे उस अजाब से डरो और अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। अभी मौका है कुछ करने का, जब इस दुनिया से जुदा हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला इन आयात से हम सबको सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।